Sir, you're mute. Okay. Good evening, everybody, once again. Now I'm getting well? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you for your feedback. Okay. I think so after Diwali, we are back here. It's my first lecture after Diwali. Lectures started on Friday, actually. And hope you all enjoyed Diwali very well, since it is safe. Being it's pandemic going on, you may have taken a proper care, what I expect you would have. Okay, so after this Diwali vacation, we have resumed with the lectures. And I think, as I recall, as I remember, in last lecture, before Diwali, we were continuing with the solutions and collegiate property. And that chapter is over with all the numerical, theoretical part and everything. Am I right? Now, as suggested by the admin, they asked me to start with new chapter. That is nothing but you can say chemical kinetics. This is the chapter. So hope you all are compatible with this chapter, chemical kinetics. Okay. So let's move to now chemical kinetics then. Okay. Okay. So chemical kinetics. If we categorize the chapter as like easy chapters, medium, moderate chapters, and bit tough chapters, according to students' point of view, I'm saying, not my point of view, because as my point of view, most of the chapters are very easy, very comfortable, and maybe complexity is there in some of the chapters. That doesn't mean they are tough chapter, but from the point of view of the students, if we classify the chapter, that is, you can say simple chapters, medium, moderate chapters, and difficult chapters. So this is the chapter which comes under the category of medium or moderate category. Need not to have botheration because this is very simple chapter in that sense, and come to the medium level, moderate level. Once you understood the concept here in the chapter, then this chapter becomes easy. This chapter has a very nice combination of theoretical part as well as mathematical part. So this chapter has very nice combination of this two part. It has very nice concept where you have to learn some definitions, some statements, and also some assumptions as well. This has the combination of very nice mathematical part, of mathematical combinations are there. So we have to discuss here in this chemical kinetics. As I stated, it comes under the category of moderate or medium in order to prepare from student point of view. How or why I'm saying like this one? Because as far as the length is concerned, it's a very short chapter. Very, it's very topics are given at very point-to-point level presentation and all. So in that sense, length is short, not that much as compared with some other chapters. And concepts are also so easy. It's very easy. It has some theoretical part definitions which are very easy, and these are related with our daily life as well as mathematical part. Already we have discussed some of the mathematical part, and that has the similarity here in this one. Okay, so chemical kinetics chapter के अंदर क्या है? Let's have the introduction of this chapter. What is included here in this chapter? As the name suggests, chemical kinetics. Now we know the meaning of this word. What is meant by chemical? We know very well. This is related with the there are different types of chemicals, chemical reactions. And chemicals means simply that is the word. What about this kinetics? Kinetics means related with the speed, related with the rate. That means the kinetics. So हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे जानते हो कि पुराने जमाने में काइनेटिक्स करके स्कूटर गाड़ी था. सबसे पहला शायद स्कूटर गाड़ी काइनेटिक्स ही था. जिस तरीके से आज आप एक्टिवा गाड़ी चलाते हो या एक्सेस ये गाड़ी चलाते हो, उस तरीके से काइनेटिक्स करके गाड़ी थी. काइनेटिक ग्रुप है, मतलब उसका एक गाड़ी था जो स्कूटर रहता है. काइनेटिक नाम उसी से डिराइव किया गया कि स्पीड वाला, रेट वाला, उसी से डिराइव किया गया है. दैट इज यू कैन से नथिंग विद द काइनेटिक्स. नाउ अब देखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कई सारे रिएक्शन डिस्कस किए. देयर आर मेनी रिएक्शंस यू आर डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट 300 प्लस टिपिकल रिएक्शन यू डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Or when you are dealing with the chemical reactions in organic chemistry, mainly you are dealing with this is the reactant react with this is the react to produce this product. ये product उसके अंदर तैयार होते हैं. ये हमने reaction का pattern देखा हुआ है. ठीक है. But organic chemistry के अंदर एक factor हमने कभी discuss नहीं किया. That is nothing but the time factor, rate of the reaction factor. You never have discussed that.
how much time is required for that reaction to proceed, to complete, to go ahead, that never you have discussed. कभी बताया नहीं जाता, कभी नहीं आता. Even you have seen SN1 SN2 reactions, फिर भी उसी के अंदर टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं किया गया है. तो उसके अंदर आप ग्राफ भी देखते हो SN1 SN2 रिएक्शंस का, फिर भी उसके अंदर टाइम फैक्टर नहीं डिस्कस किया, क्योंकि टाइम फैक्टर कंसिडर करना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम नहीं है. दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एंड दिस इज द चैप्टर व्हिच इज रिलेटेड विद द टाइम. हाउ मच टाइम इज required for the reaction to complete, to start, to initiate, to happily done. So that is the part which is related with the time factor, and that time factor, when mixed with the concentration change, that gives the rate of chemical reaction. So time factor is very important. How much time that particular reaction will take, that is what we are going to discuss here in the chapter. That is rate of the reaction. That is chemical kinetics. So again, this chapter has 3 sections. First section will be having definitions, initial fundamental definitions and fundamental introduction, or fundamental concepts which are needed here in this chemical kinetics. Middle part is related with some core concept of chemical kinetics and its mathematical part. And last part, third section is related with applications, or you can say not directly applications, but there are some of the theories, some other theories which supports to the concepts or principles of this chemical kinetics. So these are the 3 sections of the chapter. The first section is dealing with introduction of some fundamental principal concepts of this chemical kinetics chapter. Middle part deal with the core concept and theoretical as well as mathematical deduction of these concepts. And last part deals with some other theories which supports to this principles or theories involved here in this chemical kinetics. Got it? So in this way we are going ahead here in the chapter. इस तरीके से हम chapter के अंदर discuss करेंगे और आगे चलेंगे. ठीक है? So be relaxed. It's very easy chapter. Need not to take any burden here in this chapter. But one thing is very clear. मैं mostly आपको बता देता हूँ कि किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर को समझना है तो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह समझेंगे तो चैप्टर आगे समझने में आसानी होती है, इजी जाता है. सेम फिनोमेना इज गोइंग टू हैपन विद दिस चैप्टर. यहाँ पर भी इस चैप्टर के साथ सेम फिनोमेना होने वाला है. सो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज दैट कि आप इस चैप्टर के साथ उसी तरीके से प्रॉपर्ली चले और उसी तरीके से आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा इजी होगा, सिंपल होगा उस तरीके से जाना. क्लियर विद दिस? तो स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिएगा. आज जितने डेफिनेशन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तुरंत आज उसे घर जाके पढ़िएगा, समझिएगा. कल के लेक्चर में बैक वो प्रिपरेशन के साथ आइए. सो आपको कल के लेक्चर के साथ आज तरह समझेगा. अगर स्टार्टिंग में कहीं अंडरस्टैंडिंग में गलती की हमने तो ये बात जरूर है कि आगे चैप्टर नहीं समझेगा. ओके, देन फिर आप डिफिकल्टी महसूस करेंगे, आप बताएंगे कि शायद सर ठीक से नहीं पढ़ा है. सो इफ यू डोंट वांट टू हैव दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, please attend well right from the starting of the chapter because initial concepts are very important here in this chemical kinetics. Clear? So let's have to first section of this chapter, that is called as introduction to chemical kinetics and all. So as I stated, what is the name suggests? Chemical kinetics. Kinetics means related with the rate, related with the speed, related with the time factor. Because again हम speed measure करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो हम भी speed measure करते हैं, लेकिन उसके अंदर टाइम फैक्टर है ना. टाइम एंड स्पेस ऐड नहीं करेंगे सो वो आगे नहीं जा पाएगा. तो हम गाड़ी का स्पीड कैसे कम करते हैं? 40 किलोमीटर पर आवर. सो हमारी गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में जितने स्पीड से अभी गाड़ी चल रही है उतने स्पीड से चलेगी तो 1 घंटे में हम लोग 40 किलोमीटर जा पाएंगे, ऐसा उसका कहना होता है. सो 40 किलोमीटर पर आवर विद टाइम, विदाउट टाइम वी कैन मेजर दैट. तो रिएक्शन का भी वही है. सो काइनेटिक्स इज रिलेटेड विद द टाइम फैक्टर, रेट फैक्टर, एंड rate can't be defined without the time factor. So time क्यों जरूरी है? देखिए ना, दुनिया में 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं. दुनिया में 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं. कुछ रिएक्शंस होते हैं बहुत ही स्लो रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं, और कुछ रिएक्शन होते हैं बहुत ही मॉडरेट लेवल के होते हैं. मॉडरेट लेवल के, अब देखिए 3 टाइप की रिएक्शंस है. स्लो रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन. फास्ट के अंदर भी फास्ट, मॉडरेट फास्ट या टू फास्ट ऐसा कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग. बट अभी हम लोग देखेंगे 3 टाइप की रिएक्शन होते हैं, स्लो, मॉडरेट एंड फास्ट रिएक्शन. अभी फास्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो 1 into 10⁻⁻15 सेकेंड्स इसमें रिएक्शन कंप्लीट होता है. देखिएगा, दिस इज द फास्ट रिएक्शन. फास्ट रिएक्शन कितना फास्ट होता है? दिस इज द रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स विद इन 10⁻⁻15 सेकेंड्स. अभी ये पावर और इसका मतलब आप समझ लो तो देखिएगा, 10⁻⁻15 सेकेंड्स, 1 सेकेंड के 10⁻15 पार्ट. ये फिगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1/10⁻15 सेकेंड्स, ऐसा भी लिख सकता हूँ. आप अच्छी तरह जानते हो दिस इज द नोटेशन हाउ वी कैन राइट दिस वन.
So as per this notation, 1 second का 10⁻15 parts, जैसे हम 1 मिनट के 60 सेकेंड्स करते हैं, वैसे 1 सेकेंड्स के 10⁻15 पार्ट्स करने हैं, इतने में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. इट्स टू फास्ट रिएक्शन, इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, इतने फास्ट रिएक्शंस होते हैं. अभी इतने फास्ट रिएक्शन का रेट मेजर करना, ये भी थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर है, बट है, इतने फास्ट रिएक्शंस होते हैं, कर सकते हैं हम लोग, बट दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर 11-12 साइंस, बिकॉज दीज आर वेरी 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 फास्ट रिएक्शन. लेट्स मूव टू द स्लो रिएक्शन. स्लो रिएक्शंस कैसे होते हैं? कार्बन 14 का अगर हम लोग हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14 इज 5570 ईयर्स. या फिर हम रेडियम की बात करते हैं तो 10⁻19 ईयर्स, लाइक दिस वन, ऐसा. ये these are some radioactive reaction, nuclear reactions, जिनका ये रेट है. अभी कार्बन 14 जो है, मानो हमारे पास कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड 5570 ईयर्स है. मतलब कार्बन 14 का अगर हमारे पास 1 ग्राम क्वांटिटी है, तो 1 ग्राम क्वांटिटी रिएक्ट होके 0.5 ग्राम क्वांटिटी बचने के लिए 5570 ईयर्स लगते हैं. 5570 ईयर्स, 5570 ईयर्स. मतलब आपके पास 1 ग्राम क्वांटिटी था, उसका 0.5 ग्राम रिएक्ट होगा और 0.5 ग्राम बचेगा. आधा क्वांटिटी रिएक्ट होगा, आधा बचेगा. उसके लिए टाइम लगता है 5570 ईयर्स. रेडियम लाइक सब्सटेंसेस जिनका हाफ लाइफ पीरियड 10⁻19 ईयर्स, 10 के ऊपर 19 zeros ईयर्स, इतने सालों तक रिएक्शन चले. माना जाता है एज ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ अल्पस माउंटेन व्हिच इज लोकेटेड इन अमेरिका, व्हिच इज ओल्डेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ. और उसका एज कैलकुलेट किया साइंटिस्ट लोगों ने, एंड वी फाउंड दैट द एज ऑफ दिस अल्पस माउंटेन इज नथिंग बट 4.5 crore years. मतलब अर्थ शायद उसी टाइम से बना हुआ है. 4.5 crore years एज माना जाता है अर्थ का. इंसान का लाइफ कितना? इंसान का लाइफ 100 ईयर है ना. आज तो एवरेजली वो 65, 70, 80 माना जाता है, बट मानो 100 ईयर तक भी कोई बंदा बचता है, तो 100 ईयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 10⁻19 ईयर्स, 5570 ईयर्स. तो कौन देखेगा ये रिएक्शंस? कैसे ऑब्जर्व करेंगे ये रिएक्शंस? फिर भी साइंस हैज द कैपेसिटी, साइंस हैज द गट्स to calculate these speeds, these rates, and that is nothing but the kinematics or kinetics of these reactions. We are dealing with the rate of reaction. We are dealing with the time factor related with reactions. That is what we do. So these are two slow reactions. Slow reactions. These are fast, two fast reactions. Here are the moderate reactions. Whatever the reaction you discuss in organic chemistry, mostly are here moderate reactions. These are the reactions which completes within few seconds, few minutes. These are the reactions which completes within few seconds. Few word which is common. Few. There may be seconds. There may be a minute, there may be hours, there may be days, there may be weeks, there may be months, like that. So these reactions comes under the category of moderate reaction. Even take an example of digestion process. अभी दिवाली हम लोग मीठा मीठा खाना खा रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, है ना. तो ज्यादा खाना भी खाते, शायद थोड़ा सा बाहर का माहौल भी अच्छा होता है, विंटर सीजन में खाना ज्यादा ही जाता है हमारा. तो हम जो खाना खाते हैं तो डाइजेशन के लिए 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक लगता है. अभी फूड आइटम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. नॉर्मली वेज वगैरह ऐसे आइटम खाएंगे तो 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक डाइजेशन होता है. डाइजेशन इटसेल्फ इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, एक रिएक्शन होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर. और नॉन वेज जैसी चीजें खाते तो शायद हो सकता है 12 से 14 आवर्स तक वो डाइजेशन के लिए टाइम लगता है. दैट इज आल्सो वन ऑफ द रिएक्शन. लैबोरेटरी में आप रिएक्शंस करते हैं, घर में हम रिएक्शन, घर में हम कर्ड पुट करते हैं, है ना. मतलब कर्ड बनाने के लिए हम लोग प्रोसेस लगा देते हैं. रात को हम लोग मिल्क और उसके अंदर थोड़ा कर्ड डाल देते हैं और सुबह कर्ड बन जाता है. उसके लिए भी 7-8 घंटे का रिएक्शन के लिए टाइम लगता है. तो आप ये जानते हो अच्छी तरह ये रिएक्शन. या फिर हम लोग लैबोरेटरी में एक्चुअली रिएक्शन करके देखते हैं. कई सारे रिएक्शन हमने लैबोरेटरी में किए, 11th स्टैंडर्ड के लैब में अपनी रिएक्शंस किए. These reaction may get complete within few seconds, few minutes, few hours, few days, few months. This comes under the category of moderate type of reaction because they complete within this time frame. So, being here in 11th-12th science, we are not dealing with these two fast reactions or slow reactions. We are dealing with moderate type of reaction. तो इस चैप्टर के अंदर जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे मेनली वो मॉडरेट टाइप के रिएक्शन जो होंगे, जो few seconds, few minutes और as well as you can say few days or few months में कंप्लीट होते हैं, उस रिएक्शन के साथ हम डील करेंगे. That is what we can say. Clear with this? So, though there are 3 types of reactions, we are mainly dealing with this moderate type of reaction which gets completes within few seconds, minutes, hours, days, and that is what the part of this chemical kinetics. We can calculate the speed of this too fast, too slow, too fast reaction, too slow reactions. But 11-12 का हमारा scope moderate reaction के साथ कंसर्न है, जो few seconds, few minutes, few hours में कंप्लीट होता है, उनके साथ डील करते हैं. Clear with this? So that is what we can see here. Now, reaction की बात करेंगे. ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर डिस्कस किया था, जिसके अंदर कुछ चीजें हमने वहां पे डिस्कस किया है. वहां पे हमने
केमिकल रिएक्शन होता क्या है, मतलब वो आर द रिएक्टेंट, वो आर द प्रोडक्ट, ये बेसिक फंडामेंटल वहां पे डिस्कस किया था। देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फिर व्हिच आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने वहां पे डिस्कस किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह शायद आप ये रिकॉल कर पा रहे हो, वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर भी अभी आते हैं हम लोग कि रिएक्शन होता क्या है। सपोज वी आर हियर, A is the reactant gives you B is the product, this is the reaction, ये reaction। इसके अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं एरो किस तरह फॉलो अपार्ट जो होता है, दिस इज नथिंग विद द रिएक्टेंट एंड दिस इज नथिंग विद द प्रोडक्ट। सो ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो ये हमारा एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन हमने कंसीडर किया। A is the reactant, B is the product. So A is always called as a reactant because it is to the left hand side of the reactant and arrow, and this is to the right hand side of the arrow, and these are called as a product. So reactant and product हमेशा ऐसे होता है। अब ये सिंपल रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स लेना है तो A plus B प्रोसेस C plus D ऐसा भी हो सकता है, कई सारे टाइप की रिएक्शन हो सकता है। So we can have different type of reaction. Say suppose अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है, suppose we have A plus B gives you C plus D. Here again these are the reactant, these are the product. Again be clear now, here are the reactant, here are the product. ये हम अच्छी तरह जानते हैं। या और तीसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देना है, हम ले सकते हैं, that is A moles of A reacts with B moles of B gives you C moles of C plus D moles of D, ऐसा। अभी इसके अंदर भी ये है, ये तीनों एग्जांपल्स हैं, जनरल एग्जांपल्स हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल भी ले सकते हैं रिएक्शन के, कई सारे पर्टिकुलर एग्जांपल्स हमारे सामने होते हैं। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। और रिएक्शन हमेशा कैसे पढ़ा जाता है आप जानते हो, दिस इज द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोडक्ट, सिंबल ऑफ रिएक्टेंट, सिंबल ऑफ प्रोडक्ट, एंड इसके आगे यहाँ पे जो कुछ होता है दैट इज नथिंग बट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट रिएक्टेंट, जो हमने यहाँ पे लिया। ये दोनों रिएक्शन में ए के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। जैसे हम लोग मैथ्स में हमेशा x कंसीडर करते हैं, सो हम अच्छी तरह जानते हैं कि x इज ऑलवेज 1x, है ना। मैथ्स में आपने कई बार देखा है कि आप जब x कैलकुलेट करते हो तो x मतलब 1x होता है, बट हम 1x कभी नहीं लिखते हैं। द रीजन बिहाइंड 1x इज ऑलवेज रिटन एज x, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो होता है, कोएफिशिएंट होता है। उसी तरीके से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1 1 1 है। और इस रिएक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, 1 मोल ऑफ A रिएक्ट टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ B। इस रिएक्शन को कैसे पढ़ा जाता है, 1 mole of A reacts with 1 mole of B, produces 1 mole of C and 1 mole of D. This is the way. इस रिएक्शन को कैसे पढ़ा जाएगा, ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d है, these represent the number of moles, whereas this capital letter indicates the symbol of elements. It's a very important. Capital letter indicates the symbol of elements, whereas small a, b, c, d represent the number of moles. तो इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका है, A moles of A reacts with B moles of B, produces C moles of C and D moles of D. ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का जो चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में, उसमें हमने किया था। तो ये आपके लिए नया नहीं है ना। सो ये हम अच्छी तरह जानते हैं। आगे हमें डिस्कस करना है कि इस रिएक्शन का रेट होता है, इस रिएक्शन का रेट होता है। और रिएक्शन का रेट कैसे दिया जाता है, तो रिएक्शन का रेट देने का एक फॉर्मूला है। रिएक्शन का रेट ऐसे दिया जाता है, दैट इज यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration upon time taken. Time taken. This is the formula by which we can calculate. Yeah, this is also, you can say, definition. This is a definition as well as it is a formula, mathematical formula, how we calculate the rate of reaction. So rate of chemical reaction is equal to change in concentration upon time taken. Change in concentration upon time taken. So अभी ये देखिए ना कि change in concentration, कौन सा भी रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ये रिएक्शन कंसीडर करो, ये रिएक्शन करो, ये कौन सा भी रिएक्शन कंसीडर करो, चेंज इन कंसंट्रेशन तो होने वाला है ना। तो अभी ए में ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बाद में लेते हैं हम लोग, पहला सिंपल रिएक्शन के साथ डील करते हैं 10 वां। ओके, इसी रिएक्शन के साथ डील करते हैं, दिस इज ए एंड बी। अभी ये कह रहा है, ये डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन और विद द टाइम is called as a rate of chemical reaction. So this is a formula to change in concentration upon time taken. But अभी रिएक्शन के अंदर दो चीजें हैं, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है, और with the time concentration of reactant also changes और concentration of product also changes, दोनों का concentration change होता है। ग्राफिकली अगर आप डिस्कस करते हो, ग्राफिकली देखते हो, अब देखिएगा, this is graphically, so ये ग्राफ है, here we have taken a concentration term and here we have taken a time term, again ये दोनों चीजें। So here you can say on y-axis we have taken concentration term and x-axis we have taken a time term. अब देखिएगा इनिशियली हम A की बात करते हैं तो A का concentration ज्यादा रहेगा, being it's a reactant, इसका concentration ज्यादा रहेगा, और B का concentration 0 रहेगा, because B product है, वो बाद में बनेगा, और ये हमारे पास reactant है, ये हमारे पास रहेगा, तो A का concentration ज्यादा है। So this is the concentration of A, with concentration of A is written in square bracket, ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। Concentration written always in square bracket, हमने
11th स्टैंडर्ड के केमिकल इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में डिस्कस किया था। स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखा है, मतलब इसे रीड कैसे किया जाता है, कॉन्सर्वेशन ऑफ ए। कॉन्सर्वेशन ऑफ ए इज हायर इनिशियली, और ये जीरो है। विद द टाइम दिस कॉन्सर्वेशन डिक्रीजेस, this concentration decreases. Okay, A concentration decreases. So this is the concentration of A which decreases with time. Time proceed हो रहा है तो concentration कम होता जाता है because reactant हमेशा decrease होता जाएगा. Concentration of reactant decreases and product हमेशा increase होता जाएगा, तो product का concentration बढ़ता जाएगा. तो अगर हम दूसरा ग्राफ डिस्कस करते हैं यहाँ पे, so this is ये दूसरा ग्राफ, again here time और here again concentration. So this was the concentration of A which decreases with the time. Here you can say concentration of B initially was 0, that increases with the time. This is concentration of B. This is concentration of B. तो B का ग्राफ ये है, concentration increase होता है with the time. किसका? B का, मतलब प्रोडक्ट का. किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बाद में बनते हैं. So concentration of product increases with the time and concentration of reactant decreases with the time. किसी भी रिएक्शन में reactant का concentration has to decrease and product concentration has to increase. So that is, तो दोनों ग्राफ एक साथ भी निकाल सकते हैं हम लोग. This is the concentration of A and this is the concentration of B. So you can say this is the concentration of B. So ये हम डिस्कस कर सकते हैं. तो concentration of B increases with the time, being it's a product, and concentration of A decreases with the time, being it's a reactant. So that is what we can say. This happens with the reaction. अभी हमें बेसिकली क्या डिस्कस करना है? Rate of the chemical reaction. Rate of chemical reaction is nothing but change in concentration upon time taken. Rate of chemical reaction is change in concentration upon time taken. अभी हमने ये देखा कि रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का भी बदलता है. ये मैं हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ बी का, बस ये क्या रखता हूँ. कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का भी चेंज होता है और कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का भी चेंज होता है. चेंज होना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा डिक्रीज और इंक्रीज. चेंज होना मतलब डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैन इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन कैन डिक्रीज. सो इन दैट सेंस हियर concentration of reactant decreases with the time and concentration of product increases with the time. दोनों का concentration बदलता है. किसी भी reaction में reactant का concentration बदलता है, product का concentration बदलता है. That has to be taken into consideration. So rate of reaction दोनों तरीके से define किया जा सकता है. यहाँ पे define किया जा सकता है rate of reaction is equal to, ये product है, product increase हो रहा है, तो you can say increase in concentration of product upon time taken. ये तरीका हो सकता है. This is for the reactant. और यहाँ पे क्या हो सकता है? Rate of reaction. इसके अंदर क्या हो सकता है? Rate is equal to decrease in concentration of reactant upon time taken. So be clear here. Rate of reaction can be defined in terms of reactant, can be defined in terms of product. This is the general definition. Which says that change in concentration upon time taken. But rate can be given in terms of reactant, can be given in terms of product. Rate of reaction in terms of reactant क्या होगा? Decrease in concentration of reactants upon time taken. और in terms of product क्या होगा? Increase in concentration of product upon time taken. So this is what we can say. तो rate of reaction ये भी हो सकता है, rate of reaction ये भी हो सकता है. Doesn't matter. समझ रहे आप लोग? So that is what we can say rate of reaction. That is we can say change in concentration. So suppose when we consider this reaction, A gives you B. Being A is the reactant, B is the product. किसी भी reaction में reactant concentration change होता है, product concentration change होता है with the time, and that's why rate of reaction का general definition ये है change in concentration upon time taken. This rate of reaction can be defined in terms of product or can be defined in terms of reactant. Reactant के sense में भी दिया जाता है, product के sense में भी दिया जा सकता है. So reactant के sense में क्या आ रहा है? Decrease in concentration of reactant upon time taken, और product के sense में क्या आ रहा है? Increase in concentration of product upon time taken. ये दोनों तरीके से reaction का rate दिया जा सकता है. Clear with this? So that is what we can say here, rate of the reaction. Now, rate of the reaction देने के दो तरीके वापस आते हैं यहाँ पे. Okay, अभी दो तरीके आते हैं. एक आता है that is average rate of reaction. Be clear. Average rate of reaction. And दूसरा जो आता है that is you can say instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction. ये दो आते हैं. So rate of reaction again can be given by two different ways. Number one, rate of reaction, that is called average rate of reaction. This is average rate of reaction, and this is instantaneous rate of reaction. This is instantaneous rate of reaction. अभी दोनों में क्या फर्क है देखिए ना. यही रिएक्शन की बात करें हम, यही रिएक्शन की बात करते हैं. A gives you B.
इस रिएक्शन का रेट यू कैन गिव एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यू कैन गिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मूला यही रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। लेकिन एवरेज रेट क्या होगा इस रिएक्शन का, देखिए इस रिएक्शन का एवरेज रेट होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अभी चेंज इन कंसंट्रेशन ए का भी ले सकते हैं, बी का भी ले सकते हैं। ए का कंसंट्रेशन चेंज क्या होगा, सी ए का यहाँ का कंसंट्रेशन देखते हैं, दिस इज द टाइम T1 एंड दिस इज द टाइम T2, ऐसा लेते हैं हम, है ना, टाइम T1 टाइम T2, दिस इज कंसंट्रेशन A1 एंड दिस इज कंसंट्रेशन A2, है ना। सो टाइम T1 मतलब जीरो टाइम होगा, जबकि हमारा कंसंट्रेशन A1 है, और टाइम T2 होने के बाद हमारा कंसंट्रेशन A2 है, दोनों का डिफरेंस आएगा। हियर क्या आएगा, concentration of A2 minus concentration of A1 upon T2 minus T1, ये आएगा। So this is the rate, क्योंकि change in concentration T2 minus T1, तो concentration A2 minus A1 upon T2 minus T1, ये टाइम का डिफरेंस है, ये concentration का डिफरेंस है, तो change in concentration upon time taken T2 upon T1 ये रहेगा। और इसे कैसे लिखा, ये दोनों का चेंज जो है ऐसे लिखा जाता है, change in concentration of A, this triangular delta upon triangular time, that is change in time, इस तरीके से लिखा जाता है इन शॉर्ट। सो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है इसका, ये यहाँ पे मैथमेटिकल देखिएगा, और ये इन शॉर्ट ऐसा लिखा जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा साइन चेंज इन साइन। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो एवरेज रेट इस तरीके से लिखा जाता है, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ये क्या लिखा जाएगा, सो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखा जाएगा रेट इज इक्वल टू इसी तरीके से B2 minus B1 upon T2 minus T1, तो ये सीधा आएगा change in concentration of B upon change in time, इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। This is the rate how we can write it, समझ रहे आप लोग। So this is the average rate, this is the average rate. So rate of reaction can be given in average rate of reaction and second is instantaneous rate of reaction. So average rate क्या होता है, इस तरीके से दिया जाता है। So इसका मतलब है इस रिएक्शन का रेट ऐसा दिया जा सकता है, एवरेज रेट, when I am talking about एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इस तरीके दिखता है, यहाँ पे आएगा ए के साथ में कैसा है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हियर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, दिस मस्ट बी रेट ऑफ रिएक्शन, दिस मस्ट बी रेट ऑफ रिएक्शन। अभी दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। आप चाहे रिएक्टेंट कंसीडर करो, आप चाहे प्रोडक्ट कंसीडर करो, दोनों रिएक्शन का रेट एक ही होगा, क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि हम लोग किसी दुकान में जाते हैं, अब दुकान में हम लोग 10 रुपए का कुछ परचेस करते हैं, तो हमने 10 रुपए दे दिए, तो ओनर के पास 10 रुपए आएंगे, वो दुकानदार के पास 10 रुपए आएंगे, तो हमारे यहाँ से 10 रुपए माइनस होंगे, उसके बाद 10 रुपए प्लस होंगे। तो जैसा रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उसी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोपोर्शन थोड़ा अलग भी हो सकता है उसका, लेकिन रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट उसके अंदर बढ़ेगा। और इसके अंदर रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन दिया जाता है, और प्रोडक्ट इंक्रीज होता है यहाँ पे प्लस प्लस साइन दिया जाता है ऑलवेज। सो यहाँ पे प्लस और माइनस का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे द मीनिंग ऑफ प्लस एंड माइनस इज सिंपली माइनस इंडिकेट्स दिस इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्लस इंडिकेट देयर इज अ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज जस्ट मीनिंग ऑफ दिस, नथिंग मोर देन दिस। इसका माइनस का मतलब कुछ नेगेटिव में नहीं चला जाएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव में नहीं जा सकता हो, इसलिए यहाँ पे माइनस का मतलब बस इतना ही हो सकता है, दिस इज नथिंग विद द रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद द टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम, and plus का मतलब है concentration of product increases with the time. So this is the way how we can give an average rate of reaction. This is in terms of reactant, this is in terms of product. So this is called the rate of reaction. तो अगर किसी रिएक्शन का रेट आपको कैलकुलेट करने बोला जाता है, तो यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। किसी एक का कॉन्संट्रेशन मिल जाएगा तो उसके आधार पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर विद दिस? बट दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, वी हैव सीन दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट हियर change in concentration upon time taken, change in concentration upon time taken in any of the chemical reaction. Concentration of reactant also changes, concentration of product also changes. Hence, rate of reaction can be defined in terms of reactant, can be defined in terms of product. And rate is given by two different ways, that is average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. It's very important. Average rate होता क्या है? Average rate होता क्या है? So the change in concentration of reactant over a time period, जो भी टाइम होगा वो, मान लो अब यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि दिस इज टाइम t is equal to 0 and this is time t is equal to 10 minutes, ऐसा लेते हैं 10 minutes, ओके। तो इस A1 कंसंट्रेशन 0 टाइम पे था, और जब टाइम प्रोसीड हुआ 10 मिनट के बाद E2 इतना कंसंट्रेशन बचा है, ये तो कम ही है ना, तो 10 मिनट्स के बाद, तो यहाँ पे 10 मिनट्स टाइम में ये रहेगा। सो रिएक्शन का जितना भी टाइम रहेगा
हमने 10 मिनट्स का रिएक्शन लगाया 10 मिनट्स का, हमने 20 मिनट का रिएक्शन लगाया 20 मिनट का. So over the whatever the time period, वहां पे हम निकाल सकते हैं. That is nothing but you can say average rate of the reaction. Average rate of reaction. Average rate of reaction का definition ऐसा है, change in concentration of reaction over a given time or given time period. That is nothing but the average rate of reaction. Now, what is this instantaneous rate of reaction? It's very important. Instantaneous rate of reaction. ये होता है rate of reaction at any particular instant. Rate of reaction at any particular instant. Say for this one. अभी इस reaction के अंदर देखते हैं. इसके अंदर देखते हैं. T1 और T2 इसके अंदर ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो. लेकिन अभी अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इस पॉइंट पे देखना था, सो दिस इज द टाइम T इतना टाइम T टाइम. इस टाइम पे मुझे रिएक्शन का रेट कितना था वो देखना है. इस टाइम पे रिएक्शन का रेट कितना था T2, इस टाइम पे रिएक्शन का रेट कितना था T3, इस टाइम पे रिएक्शन का रेट क्या T4, लाइक दैट. सो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट कितना था, पर्टिकुलर इंस्टेंट. तो इस इंस्टेंट पे क्या करना पड़ता है, मानो इस इंस्टेंट पे मुझे निकालना है, तो आई हैव टू हैव टेंजेंट हियर. So this is the tangent and this tangent, slope of this tangent is nothing but the rate of reaction. ये जो tangent यहाँ पे निकाल, यहाँ पे निकालना है. So this is you can say T1 time और यहाँ पे मैं tangent निकालता हूँ. So this tangent must touch this point here. So ये जो line है यहाँ से, ये tangent है यहाँ पे, इसका जो slope होगा that is nothing but the rate of reaction. अभी instantaneous rate और इस rate में एक छोटा सा फर्क होता है. Instantaneous rate कैसा देखिए, यही है जो इस reaction का है, that is you can say delta A upon delta T. इसे लिखा जाता है delta A upon डेल्टा टी. देखिए इतना फर्क. और बी के लिए लिखा जाएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. प्लस दिस हियर माइनस, ये सेम रहेगा. अभी देखिए ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है. दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. दोनों इक्वेशन में फर्क क्या दिखता है आपको? दोनों इक्वेशन में फर्क दिखता है. यहाँ पे डिफरेंशियल डेल्टा है और यहाँ पे ट्रायंगुलर डेल्टा. सो ट्रायंगुलर डेल्टा इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंशियल डेल्टा. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, व्हेन there is a very small change in concentration when there is a very small change in time, then that rate will be at a very particular instant. मतलब अभी इस टाइम पे निकालना है, इस टाइम पे रेट निकालना है T1 टाइम पे, तो उसके पहले वाला concentration this is you can say concentration B1 और इसके सेकंड वाला concentration B2. ये दोनों concentration का डिफरेंस इस पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के बाद वाला. When this change in concentration difference is very small, then we can have a very perfect rate of reaction. दोनों कॉन्सेंट्रेशन के अंदर डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो दैट विल बी एवरेज, और दोनों कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बहुत ही छोटा है दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एट दैट इंस्टेंट. अभी देखिए ना, उसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि एट दैट इंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है. आपने एक्सीडेंट कभी देखे होंगे, सुने हैं, एक्सीडेंट के बारे में सुना है, या कभी आपने खुद थोड़ा सा उस टाइप का सिचुएशन सफर किया होगा. एक्सीडेंट, चलो हम लोग कभी टू व्हीलर पे चल रहे हैं, सडनली कोई गाड़ी अचानक हमारे ऊपर आती है, हम लोग उसमें से साइड लेते हैं हमारा गाड़ी और हम उसमें से बचते हैं. ऐसा शायद आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, या कभी आपने सफर किया होगा. अब देखें ना, जनरली एक्सीडेंट उस इंस्टेंट पे जो मिस्टेक होता है उसके कारण होता है. नॉर्मली बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, बहुत दिनों से गाड़ी चलाते हैं, और जब हम एवरी मोमेंट कॉन्शियस रहेंगे, अच्छी तरह गाड़ी चलाएंगे, तो एक्सीडेंट की चांसेस बहुत कम है. बट अगर उस इंस्टेंट पे कोई मिस्टेक करते हैं, उस इंस्टेंट पे, तो एक्सीडेंट होना. मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, आप टू व्हीलर चला रहे हो, और आप टू व्हीलर चला रहे हैं और अचानक से सामने कोई पैदल चलता हुआ मुसाफिर आपके सामने आ जाता है. अभी गाड़ी का आपका स्पीड मानो 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहा है, सडनली कोई बंदा गाड़ी का रास्ते पे आपके सामने आ जाता है. अभी गाड़ी आप बहुत दिनों से चला रहे हो, उस दिन भी चला रहे हो, वहां पे भी आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस पार करके आए थे, लेकिन जिस मोमेंट पे, जिस इंस्टेंट पे वो बंदा आपके सामने आता है, उस मोमेंट पे आप क्या एक्ट करते हो, दैट मैटर्स लॉट. मानो आपने एकदम प्रॉपर्ली ब्रेक लगा दिया, एक्सीडेंट नहीं होगा. मानो आप वहां से साइड से गाड़ी आपका टर्न करके लेके चले गए, एक्सीडेंट नहीं होगा. बराबर है, देयर आर मेनी ऑप्शंस व्हाट यू कैन गो है. लेकिन आपने मानो आप कंफ्यूज हो गए, क्या करना समझ में नहीं, आपने हाथ निकाल के कान पे रख दिया, हाँ एक्सीडेंट होना है. दैट मेक्स बिग डिफरेंस. मतलब इसका मतलब है कि दैट इंस्टेंट पे क्या एक्ट करेगा, और आप बाद में बोलते हो नहीं, उस इंस्टेंट पे मेरा कॉन्शियस ठीक से काम किया एंड दैट्स व्हाई हम बच गए एक्सीडेंट से. ये होता है, समझ. सो दिस इज व्हाट यू कैन से एट दैट इंस्टेंट. दोनों कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस जितना छोटा होगा, उतना हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट एट दैट इंस्टेंट का रेट निकाल सकते, उस इंस्टेंट का, और ये ओवरऑल एवरेज रेट निकाल सकते. इसका दोनों का डिफरेंस देखने के लिए मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा. चलो हम जानते हैं कि पुणे से बॉम्बे डिस्टेंस ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है, 191 किलोमीटर डिस्टेंस है. हम मानते हैं कि 200 किलोमीटर डिस्टेंस है पुणे से बॉम्बे, और हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं. अभी दिवाली में भी शायद आप यहाँ गए होंगे, और हम बॉम्बे से पुणे जा रहे हैं, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है. हमने सुबह 10 बजे निकले यहाँ से,
दोपहर को 12 बजे हम लोग वहां पे पहुंच गए। 2 घंटे में हमने 200 किलोमीटर डिस्टेंस पार किया। मतलब हमारी गाड़ी का स्पीड कितना रहा? 100 किलोमीटर पर आवर। बराबर है कि नहीं? बिकॉज हमने 200 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में पार किया है, तो इसका मतलब है हम 100 किलोमीटर पर आवर से निकले। अब देखिए, हमें बॉम्बे जाना है तो हम हमारे घर से निकलेंगे। हम लोग मानो विश्वनाथवाड़ी जैसे एरिया में रहते हैं, वहां से निकलते हैं, हमारे घर से निकलते हैं। तो जैसे हम विश्वनाथवाड़ी से निकलते हैं, हम विश्वनाथवाड़ी से निकलते निकलते आगे जाएंगे, चौक लगेगा, सिग्नल्स लगेंगे, पुणे सिटी का क्राउड लगेगा, और वो सारा पार करते चलेंगे हम लोग, और फिर फाइनली हम लोग बॉम्बे का वो सब रोड सिग्नल सब पार करके बॉम्बे में पहुंच जाएंगे। इन बिटवीन कितने सारे सिग्नल आए, कितने सारे ट्रैफिक आए, उसमें हम चले, बट फिर भी एवरेज रेट हमारे गाड़ी का क्या बता रहा है? 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 2 घंटे में हम लोग बॉम्बे चले गए। तो मतलब दिस इज नथिंग द एवरेज रेट। हम 200 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में चले गए, 200 किलोमीटर पर आवर हमारे गाड़ी का स्पीड रहा, दैट इज एवरेज रेट। बट अगर आप 10 बजे निकले थे, 12 बजे बॉम्बे पहुंचे, तो 10:10 पे आपकी गाड़ी का स्पीड क्या था? 10:30 पे आपकी गाड़ी का स्पीड कितना था? 10:40 पे आपकी गाड़ी का स्पीड कितना था? 11 बजे कितना स्पीड था? 11:30 बजे कितना स्पीड था? दैट इज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, व्हिच इज 10, है ना? तो मानो 10:10 पे हम लोग किसी चौक में, चौराहे पे खड़े थे सिग्नल पे, तो हमारी गाड़ी का स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर था। फिर 10:20 पे हम किसी ट्रैफिक में चल रहे थे, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे। 10:40 मानो हाईवे पे चले गए, तो हमारी गाड़ी चल रही थी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे हमारी गाड़ी का स्पीड क्या था? अलग अलग था। हमारी गाड़ी का रेट अलग अलग था, मतलब स्पीड अलग अलग था। इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस, मतलब एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट हमारी रिएक्शन अगर 10 मिनट की रिएक्शन है, तो 5 मिनट पे रिएक्शन का रेट क्या था? 5 मिनट एंड 5 सेकंड पे रिएक्शन का रेट कितना था? 6 मिनट पे रिएक्शन का रेट कितना था? That is nothing but that particular instant, and this is nothing but the instantaneous rate. So in order to calculate the instantaneous rate of reaction, the change in concentration has to be very, very small, and time duration has to be again very, very small, because change in concentration is very small, so time duration is also very, very small. T2 minus T1 is also very small, and that's why it is denoted by differential sign. Differential sign से वो दिखाया जाता है. So that is what we can say instantaneous rate of reaction. So rate of reaction at any particular instant is what is instantaneous rate of reaction, and average rate is a change in concentration over a given time period is called as an average rate of reaction. So this is what we can say, two rates of reaction. समझ रहे हैं आप लोग? So we have entered into the chapter that is chemical kinetics, and we are discussing here reaction rate of reaction. So we have seen that there are three types of reaction: a slow reaction, moderate reaction, and fast reaction. Here in the chapter we are dealing with moderate type of reaction, where which reactions complete within few seconds, minutes, hours, days, months, like that, and these are called as moderate reactions. So what is the rate of reaction? Rate of reaction is nothing but the change in concentration upon time taken is called a rate of reaction. But in any of the reaction, both reactant and product changes. Concentration of product and reactant both changes. So rate of reaction can be given in terms of reactant, rate of reaction can be given in terms of product. So like this one, rate of reaction in terms of product is increase in concentration of product upon time taken. Yeah, for this rate of reaction in terms of reactant is decrease in concentration of reactant upon time taken. So this and this are equal, and that's what we can say. This is the way how we can write the rate of reaction. Now, rate of reaction can be given by two different ways. That is average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. So average rate of reaction is nothing but change in concentration over the time period given time, and this is nothing but change in concentration upon at particular time, at particular instant is called as instantaneous rate of reaction. दोनों को मैथमेटिकली दिखाने का फर्क इतना ही है. This is shown by triangular delta, and this is shown by differential delta. बाकी rest of the things are almost similar. So that is what we can say: average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. In chemistry, we're mostly dealing with instantaneous rate of reaction at any particular instant. So that's why we'll be dealing more with this, not with this one, average rate of reaction, because we are not interested more in this one. We are interested in this one. और इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं, no doubt at all. So that is what we can say. Both are the rate of reaction. That is average rate and instantaneous rate of reaction. Clear with this? That is what we have. So please note down this formula. Everyone, please note down this formula. And I think so. That's all for today. We'll come up with tomorrow with next concept related with this average and instantaneous rate. Till then, thank you very much. See you tomorrow then. Thank you, sir. Yes, welcome.